ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। अब जब सारा कुछ ठीक हो गया उसके बाद से फिर सब धमकियाँ आने लगी। उनका ये है कि तेरे को तो यहीं मारेंगे हम और इसको ले जाके वहाँ पे अपने शिया रूल के हिसाब से मारेंगे, जो हमने तालिबान के जो हमारे से शुरू से चलते आ रहे हैं। मेरी जो मम्मी की ख़ुद की मामा है ना, उनकी लड़कियों को भी पहले जहर दे दिया था। उसके बाद इतना उसको मारा ना सर, पूरा उसका बदन काला हो गया था। पीछे एक अफ़गानी पर्सन आया यहाँ पे इसकी फैमिली की तरफ से, तो जाते हुए वो धमकी देकर गया कि अगर मैं घर ढूंढ सकता हूँ ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये सोच रही कि चलो पापा है नहीं है, शायद मम्मी एक्सेप्ट कर ले क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ। उन्होंने इतना बोल दिया कि आज के बाद तू मेरे लिए मर चुकी हो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੋ ਦੋ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। सर पहली नज़र वाला प्यार हो गया ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀਓ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। तो सर ऐसा ही हुआ है, पहली नज़र वाला प्यार हुआ है इसको। तो इसके साथ मैंने जब बातचीत करी है मैंने इससे कि शादी करनी है सीधी तेरे साथ, अगर तेरे को है ठीक लगता है तो करते हैं। पहली हिट मारी है। हाँ जी, सेकंड टाइम पे ही पूछ लिया था मैंने इसको। फर्स्ट टाइम पे तो नंबर एक्सचेंज हो गए थे, सेकंड बारी में मैंने सीधी डायरेक्ट यही चीज़ उसको पूछी थी। तो इसने टाइम लिया कि एक बार पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर पेरेंट्स मानेंगे तो हम देखते हैं उसके बाद। ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 2020 ਚ 20 में हाँ बस ਆਪਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਾਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੈਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ नहीं अफगानिस्तान च फैमिली बैठी अपना और की कर लो। हाँ पहले माइंड में भी ये भी था और थोड़ा सा इस मामले को लाइटली भी लिया हुआ था हमने कि यार कोई बात नहीं अभी तो चलो शादी कर लेंगे तो शायद मान जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तब अपने ये चीज़ें नहीं कभी धमकी धमकी नहीं आई या कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। उनको ये था कि शायद नहीं करेगी या तो ये वैसे ही मजाक कर रही है या तो बात वैसे ही कर रही है हवा की। तो पर जब इसने शादी कर ली बताया तो उसके बाद से तो फिर हालात वहाँ पे भी थोड़े ख़राब हो गए और यहाँ भी अपना कोरोना का था, लॉकडाउन लगा हुआ था, फ़्लाइट्स वगैरह नहीं थी अवेलेबल। तो जब यहाँ कोरोना का सिनेरियो सेट हुआ तो वहाँ पे तालिबान का शुरू हो गया, तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम गुजर गया। तो उसमें हमारा 1 साल तो वैसे ही निकल गया अच्छे से। अब जब सारा कुछ ठीक हो गया उसके बाद से फिर सब धमकियाँ आने लगी। उनको पक्की तरह से इतला मिल गई कि शादी इन्होंने कर ली है, सब कुछ हो गया। पीछे एक अफ़गानी पर्सन आया यहाँ पे इसकी फैमिली की तरफ से, वो आया ढूंढता हुआ घर, वो 1 महीने से ढूंढ रहा था हमें, तो वो आ गया घर सीधा। तो इसको नाम से पुकार लिया इसने और इसको पूछने लगा कि क्या बात है कैसे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली अपने पास। तो जाते हुए वो धमकी देकर गया कि अगर मैं घर ढूंढ सकता हूँ ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस हम वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई हमारे साथ। सर आप जिस तरह से उन्होंने बताया कि पहली नज़र में ही बिल्कुल प्यार हो गया आपको भी, क्योंकि फिल्में तो आपने भी बहुत देखी होंगी, पहले लगा था कि सीरियसली ये इतनी दूर तक जाएगी पारी, इस तरह से हमने शुरुआत की है शादी तक बात जाएगी?
सर ये लव मैरिज वाला सीन था ना, मैंने मूवी में बहुत सारे देखे हुए थे। मैंने सोचा नहीं थे कि मेरे लाइफ में भी ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनके साथ बातचीत किया, जिस तरह इनका नेचर है ना, वो मैंने इनका परिवार देख लिया। फिर मैंने सोचा कि लड़का अच्छा है। फिर इन्होंने जब प्रपोज भी किया, इन्होंने बोला कि धोखा नहीं देना है, शादी करना है बस। फिर मैंने हाँ बोल दिया इनको। फिर मैंने इनसे टाइम भी लिया था, मैंने अपने परिवार को मनाने के लिए फिर बहुत कोशिश। इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ हो रहा है कि कहीं कल को दो, क्योंकि देखो अगर लोकल हो बंदा तो फिर कुछ और बात होती है, लेकिन आप जब इतनी दूर से हो, आपके परिवार साथ में नहीं है, तो मन में भी 100 सवाल निकल के सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं कुछ हुआ? नहीं सर, क्योंकि अगर इनको मेरे को धोखा देना था ना सर, इन्होंने सेकंड टाइम में अपने परिवार से नहीं मिलवाना था मुझे, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली अपनी मॉम से मिलवा दिया मुझे। फिर मेरे को इनको ऊपर भरोसा भी था, शुरू से भरोसा था। इनका नेचर देख लिया मैंने, परिवार देख लिया, परिवार बहुत अच्छा है इनका। फिर मैंने सोचा कि लड़का बहुत अच्छा है, यानी कि जिस तरह का मेरे को जीवन साथी चाहिए था वो वैसे ही है। फिर मैंने इनको हाँ बोल दिया शादी करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने भी काफ़ी मम्मी को कॉल किया मनाने के लिए कि मेरी शादी हो चुकी है अब। आपका परिवार करता क्या है वहाँ पे? मम्मी तो हाउस वाइफ है, पापा आर्मी में था। 6-7 साल हो गया, शहीद हो गया, तालिबान ने मार दिया उसको, टेररिस्ट ने बॉम्ब से उड़ा दिया। 4 भाई हैं, एक भाई आर्मी में था मेरा, वो अभी तालिबान की वजह से उनका जॉब भी गया। फिर 2 भाई तुर्की में अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। फिर छोटा वाला भाई अभी स्कूल में है। सारा परिवार ही अगर कहें तो इधर उधर ही है, सारा इकट्ठा नहीं है परिवार वहाँ। सारे अलग अलग जिस जगह। तरह से ये धमकियों वाला सिलसिला शुरू हुआ उससे लेकिन लगता तो ये है कि इतनी दूर अफगानिस्तान में कोई बैठा है तो यहाँ धमकियाँ दे भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये सीरीज़ कैसे होगी बात एक्चुअली ये सर, पहले फ़ोन कॉल्स बहुत आता था शादी के टाइम। जब शादी हुई हमारा कुछ महीने बाद बहुत आने लगा, हमने इतना सीरियसली नहीं लिया मैटर का। फिर उसके बाद जब मेरे ख़ुद के रिश्तेदार आके गए, मम्मी के जान पहचान वाले, उस टाइम तो हमें मनाने के लिए आया था कि लेके जाए साथ में। इनको भी बहुत समझाया कि चलो घर जमाई हो, माफ़ कर देते हैं इसके परिवार वाले, चलो उधर ज़मीन वगैरह सस्ता मिलता है, लेके जाते हैं वहाँ पे तुझे, वहाँ पे हाँ नया ज़िंदगी शुरू कर लो हमारे साथ। फिर मैंने इनको समझाया, मैंने बोला ऐसी बात कोई है नहीं है। मैंने बोला वो उनका ये मतलब है कि आपको मना के लेके जाना है वहाँ पे। फिर जहाँ वहाँ का रोल, पता था कि वहाँ पे क्या हो सकता है? हाँ जी वो पता था मुझे। एक्चुअली ना सर, वहाँ पे भी मेरी जो मम्मी की खुद की मामा है ना, उनकी लड़कियों को भी पहले जहर दे दिया था। फिर उसके बाद उनको करने की वजह से उनका प्यार हुआ था सर, अफ़गानी लड़का से हुआ था। हमारे पे अलाउड नहीं है ना लव मैरिज भी। फिर उनको प्यार हुआ था, लड़का ने काफ़ी रिश्ता भी भेजा था उसके घर। फिर जब उसको चुपके से फ़ोन भी दिया था लड़का ने, जब उसके परिवार को पता लगा, उसकी मम्मी को पता लगा, उसने सीधा अपने पापा को बता दिया, उसने उसकी मॉम ने, कि ये लड़की बिगड़ रही है, उसको तो अब समझा दे। फिर पहले उसको जहर दे दिया सर, उसके बाद इतना उसको मारा ना सर, पूरा उसका बदन काला हो गया था। फिर सुबह आके हमने देख लिया उसकी लाश को सर, पूरा काला पड़ गया था, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी दिखने नहीं दिया। उसने सीधा डायरेक्टली बोल दिया, आज तो मेरे को जेल में डालोगे, फिर 5 साल 6 साल, चलो 10 साल जेल में रहूँगा मैं, लेकिन जिस दिन जेल से मैं रहा होगे ना, उस दिन तेरे सारे परिवार ख़त्म है। उससे वो बहुत ख़तरनाक है, मेरी मम्मी का जो मामा है। आपको नहीं डर लगा जैसे ये जब आपकी लव स्टोरी शुरू हुई तो आपको नहीं, क्योंकि वो चीज़ें तो जहन में होती हैं पहले कि किस तरह से वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, तब डर नहीं लगा कि हमारे साथ भी या कहीं वहाँ परिवार के साथ में वहाँ लोग ना कर दें? पहले मैं ऐसे नहीं सोच रही थी, क्योंकि मैं परिवार में एक ही हूँ सर, मेरे कोई बहन नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि चलो पापा है नहीं है, शायद मम्मी एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मैं उनकी बच्ची हूँ। फिर मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने बोला मैं खुश हूँ इनके साथ, मैंने बोला यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है मुझे, मेरे ऊपर कोई जुल्म भी नहीं कर रही है, मैं ना अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ मैं। फिर तब भी उन्होंने नहीं माना, उन्होंने इतना बोल दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो, दोबारा कॉल मत करना। जी कि पुलिस ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ होई है सारी चीज़ों की? ये एसएसपी साहब को नज़र में है ये सारी चीज़ें। नहीं सर, चंडीगढ़ एसएसपी साहब, तो उनसे हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। पेट्रोलियम पे गेड़ी लगाती है, उस पर पीसीआर वगैरह मिली हुई है, तो उसमें हमें इस चीज़ के लिए बोला है कि आप अपने मेंटली परेशान इतना मत हो, कि हम आपके साथ ही हैं। एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ दूसरी होवे, इंटरकास्ट होवे तो फिर दिक्कतें परेशानियाँ होंगी? सर हाँ, अंदाज़ा तो पहले था इस चीज़ को लेके, लेकिन ये जैसे इसके 4 भाई हैं और फादर है नहीं है, तो मेरे को ये था कि चलो ये भी बाहर ही आई है, इंडिया आई है अपने, तो अपने अफ़गान से भी थोड़ा इन चीज़ों से ऊपर उठ कर आए हैं, तो शायद मेंटालिटी में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। तो पर सर उनकी मेंटालिटी नहीं चेंज हो सकती।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈप्ट ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, हमारी तो सर जैसे कोर्ट मैरिज तो होनी होनी थी, और जैसे हमारे अपने पंजाबी तरीके से जिद्दां लावा फेरे अपने वेदी दे फेरे पड़े होंगे हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हुई हुई हैं लावा फेरे कराई? पूरे। हाँ वैसे हमने मंदिर में करवाई थी उस टाइम पे। हाँ गुरुद्वारे में अभी नहीं हो रहा था उस टाइम, सर कोरोना चल रहा था लॉकडाउन की वजह से। और फिर पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है अगर तेरे को शादी करनी है, और ये भी बेचारी ये भी रेंट पे रहती थी उस टाइम पे, तो मैं कहा यार इससे अच्छा तो शादी करके घर ही आ जा। दूजे समय रेंट भी तुसी भर रहे हो। हाँ तो वो चीज़ें ठीक नहीं है कि मैं इसको बार बार मिलने जाऊँ, तो वैसी बातें बनेंगी लोगों में, तो इससे अच्छा मैं कहा मम्मी शादी कर लूँ, बोला ठीक है कर लो। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ नहीं? नहीं नहीं, वो लोगों को सर अपने यहाँ पे सर क्या है कि सारे एजुकेटेड पर्सन है, सारी इन चीज़ों को समझते हैं। लव मैरिज को यहाँ पे सर लिविंग तक अलाउड है, तो ये तो लव मैरिज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इनका कोई ऐसा कोई ऑपोजिट मेरी तरफ खिलाफ के लिए कोई रिएक्शन नहीं था, ना पेरेंट्स का, ना रिश्तेदार, ना मेरे कोई यार दोस्तों का। तो सारा तो एक ये चीज़ बताएं कि जिस तरह से अब पूरा आपका फैमिली इन्होंने ये तो कह रहे हैं कि फैमिली ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया आपको, फिर अभी लगा नहीं कभी मन में नहीं आया? क्योंकि जब अकेला बैठता है इंसान तो सोचता है कि कल को अगर कोई मेरे साथ कोई गलत चीज़ हो जाती है, कि किसी तरह का कोई दुख तकलीफ आती है, तो मेरे पीछे कोई नहीं रहा। सर पहले भी काफ़ी अफ़गानी लोगों ने मेरे को, जब इनके साथ मेरा रिश्ता चल रहा था, बातचीत चल रहा था, तब भी बहुत सारे अफ़गानी लोगों ने ये बोला कि ये बाहर का है, कभी भी धोखा दे सकता है, बोला कि इतना भरोसा मत आम कर। तौर पर जो हम आपकी कम्युनिटी को जितना हम देखते हैं, जितना हम भी आपके अफ़गानी स्टूडेंट्स को भी मिलते हैं, तो वो ज़्यादातर बाहरी लोगों से उतना मेल जोल नहीं बढ़ाते हैं, या कहें कि अपनी कम्युनिटी में ही ज़्यादा वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। हाँ जी सर, ये बात भी आपकी सही है सर। फिर पता क्या है सर, बहुत सारे अफ़गानी लोगों ने भी मेरे को बोल दिया कि कभी भी ये लड़का धोखा दे देगा, क्या पता भाग के जाए तेरा लाइफ ख़राब करके, क्योंकि मेरे को ऊपर इन बेहद ज़्यादा यानी विश्वास था इनके ऊपर, ख़ुद से भी ज़्यादा भरोसा बहुत था इनके ऊपर। फिर उसके बाद भी सर प्रॉब्लम ये नहीं है सर, प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदू है सर, ये और ये हिंदू भी है और ये बाहर का है। अगर मैं किसी अफ़गानी लड़का से शादी कर लेती ना, मैं इनकी जगह कोई अफ़गानी मेरे साथ होता, वो भी अगर परिवार को बिना बताए मैं शादी कर लेती कोई अफ़गानी से, नहीं तब वो एक्सेप्ट भी कर लेती मेरी मम्मी। बात ये कि बोलते ये एक तरफ से ये बाहर का है और ये काफिर भी है, काफिर यानी नॉन मुस्लिम, ये मुस्लिम भी नहीं है, बाहर देश का है, ऐसे कैसे कर लिया, तो उन्हें तो अपने बाप का नाम ही बदनाम कर दिया यहाँ पे। वहाँ पे भी शायद ताने मारते होंगे हमारे जो भी रिश्तेदार वगैरह है, फिर गुस्सा भी आता होगा उधर भी, लेकिन सर मेरे को पछतावा नहीं है सर, मैं अपने लाइफ से बहुत खुश हूँ इनके साथ। कभी ये नहीं सोची ये चीज़ आपने कि जिस तरह से आपने बताया कि आपके पिता शहीद हो चुके हैं, भाई आपके आर्मी में हैं, या अभी आपकी अम्मी अकेली हैं वहाँ इस समय के दौरान, कभी ये चीज़ नहीं सोची है कि जिन्होंने पूरा पाल पोस के इतना बड़ा किया आखिरकार मैं उनको धोखा दे आई? मेरे को अगर धोखा देना था सर, मैं चुपके से भी शादी करके उनको ये बता सकती थी ना कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे पे इतना वो नहीं है सर कि मैं अपने परिवार को झूठ बोल दूँ। मैंने शुरू से बता दिया कि हाँ जी प्यार करती हूँ इनसे और शादी करनी है इनसे और किसी से नहीं करना है सर। मैंने खुद ही बोल दिया जब परिवार को, मैंने सोचा कि आगे जाके मम्मी शायद एक्सेप्ट ही कर ले, पापा तो है नहीं है, तब भी नहीं माना सर, बहुत इतने सारे कोशिश करने के बाद भी सर। फिर अभी फ्यूचर में क्या चल रही है, कहने का मतलब अभी इनके साथ में खुश हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होती है सर, छोटा मोटा तो सबके बीच में होता है सर। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। सर हमारा वैसे ही निकल गया, बातचीत मनाते करते ये वो सारी चीज़ें, जब फिर सब बस के बाहरी बात होगी तो फिर हमने कहा यार शादी कर लेते हैं, छोड़ो नहीं मानते तो कोई बात ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? नहीं सर, कोई दोस्त से नहीं, कोई बस अपनी माँ से सलाह करी मैंने, और वो इस चीज़ के लिए राज़ी थे। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਲਾਹ वैसे वो चुटकोले कह लो कि वो थोड़े इस चीज़ के लिए ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ। लेंदे होंगे, बस वो चीज़ां होंदियां कि यार अच्छा लॉकडाउन च कराने लग गया, मतलब खर्चा बचा रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन सर उस तो मैं की लेना सीगा ना, मैं तो इनू सीगा कि चल इनू घरे आवे मेरे, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਤੂੰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। पर फिलहाल तो जगह ये 2 साल बाद पंगे खड़े हो गए, नहीं अमूमन तौर पर शुरुआती दौर में ही ये चीज़ें शुरुआत में ही हो जाती, अगर ये तो आप कहें कि किस्मत अच्छी थी कि ये कोरोना आ गया और अपना हाँ थोड़ा टाइम मिल गया, और ये तालिबान ने जो कर दिए वहाँ पे सर्कमस्टांसेस पैदा अपने, तो उस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ गया मेरे को टाइम मिलने का। तो उसके बाद से अभी फिर जब वहाँ पे नॉर्मल हो गया अभी, तो इसलिए वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अब बता देंगे तुम्हें, उनका ये है कि तेरे को तो यहीं मारेंगे हम,
और इसको ले जाके वहाँ पे अपने शिया रूल के हिसाब से मारेंगे, जो हमने तालिबान के जो हमारे से शुरू से चलते आ रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇਗੇ, 100 ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਰੱਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।